ایک ایسا شخص جس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا، ماں کا مقام، ماں کا مرتبہ، ماں کی فرما برداری کا کیا صلہ ملتا ہے، اس قصے میں آج ہم جانیں گے۔ وہ شخص کون ہے؟ اویس کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ محشر کے دن جنت میں جائیں گے تو اویس بھی چلیں گے۔ جب گیٹ پر پہنچیں گے تو اللہ کہے گا کہ اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ۔ تو اویس کرنی ڈر جائیں گے، کہیں گے یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ تو اللہ کہے گا کہ پیچھے دیکھو۔ اویس پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا، ایمان والے گنہگار مسلمان جو جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیرے طفیل میں سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ مرتبہ اویس کرنی کو کیوں حاصل ہوا؟ ایسا کون سا عمل کیا تھا اویس کرنی نے؟ وہ عمل تھا ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت کا اتنا بڑا صلہ کہ جن جن دوزخیوں پر ان کی انگلی پڑے گی، اللہ ان گنہگار مسلمانوں کو اویس کرنی کے طفیل میں جنت نصیب کرے گا۔ ماں کی خدمت، اویس کرنی کون تھے؟ آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت اویس کرنی یمن کے ایک قصبے کرن میں پیدا ہوئے تھے۔ کلر مبارک سیاہ تھا، سر کے بال الجھے ہوئے تھے، بائیں ہتھیلی پر ایک سفید داغ جو برس بیماری کی وجہ سے تھا۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ والدہ نابینا تھیں اور ضعیف تھیں، ہر وقت ان کی خدمت کی فکر کیا کرتے تھے اور ان کی فرما برداری کیا کرتے تھے۔ حضرت اویس کرنی دنیا سے اتنے بے نیاز تھے کہ دنیا کے لوگ ان کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس اور وہ کرن کا رہنے والا ہوگا۔ اس سے دعا کرانا میری امت کی مغفرت کی۔ علی تم بھی دعا کرانا۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ آپ نے فرمایا، اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے کرتے کے بٹن کھولنے لگے۔ صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ کیوں کھولے؟ فرمایا، مجھے یمن سے وفا کی مہک آ رہی ہے۔ صحابہ کہنے لگے، کون ہے یمن میں؟ فرمانے لگے، میرا غلام ہے، نام ہے اویس۔ صحابہ کہنے لگے، آقا آپ کا دیوانہ؟ فرمانے لگے، اتنا بڑا دیوانہ ہے، جب بھی کوئی جاتا ہے تو میری ہی باتیں کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے تو نے حضور کو دیکھا کہ نہیں، تو نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر دیکھا کہ نہیں، تو نے حضور کو بھی دیکھا ہوگا۔ تو صحابہ کہنے لگے، حضور اگر اتنا ہی عشق ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آتا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ مجبوری ہے۔ اس کے آگے کیا کہا؟ فرمایا، گھر میں نابینا ماں رہتی ہے، اگر وہ میرے پاس آیا تو ماں کا خیال کون کرے گا؟ اتنا سنا تو صحابہ کے دلوں میں بھی حسرت پیدا ہوئی، کاش اس دیوانے کو ہم بھی دیکھیں۔ حضرت اویس کرنی کو اتنا عشق تھا حضور سے، روتے تھے۔ کوئی آتا مدینے سے تو پوچھتے تھے، میرے حضور کیسے ہیں؟ آنکھیں کیسی تھیں، زلفیں کیسی تھیں؟ وہ بتاتا، اپنی اونٹنی کا دودھ اس کو پلاتے، کہتے حضور کے مدینے کا مہمان ہے، کچھ میرے دسترخوان پر بھی کھا کے چلا جا۔ یہ عشق تھا۔ ایک دن ماں کے پیر دبا رہے تھے، جیسے ماں کے پیر پر آنسو گرے۔ ماں کہنے لگی، بیٹے اویس زیادہ بے قراری ہے؟ اویس کہنے لگے، ماں آج اتنی بے چینی ہے کہ میرا دل آج پھٹ جائے گا۔ ماں نے کہا، بیٹا جا، اجازت دی، کل میری ساری ضرورت کا سامان میرے پاس رکھ دینا اور کل جا اپنے محبوب کا دیدار کر کے آ جا۔ اجازت مل گئی، ساری تیاریاں کی۔ صبح ہوتے ہی قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ راستے میں قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ اویس کرنی کہتے ہیں، میرے پاس وقت کم تھا،
मैं काफिले के साथ नहीं रुक सकता था। काफिला रुक गया मगर मैं दौड़ता रहा। पैर की जूतियां टूट गईं, परवाह नहीं की। रेतीली ज़मीन को पार करता हुआ हुजूर के मदीने में उवैस करनी पहुँचे। रास्ते में लोगों से पूछा, मेरे महबूब कहाँ मिलेंगे? लोगों ने कहा, मस्जिद नबवी में मिलेंगे। दौड़ कर आए, वहाँ भी महबूब नहीं थे। पूछा कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा, हुजरे आयशा चले जाओ। हुजरे आयशा आए, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से उम्मुल मोमिनीन की आवाज़ आई। दरवाज़ा किसने बजाया है? कहते हैं उवैस आया है। कहा उवैस आया है, महबूब से मुस्तफ़ा से मिलना है। कहा हुजूर अभी बाहर चले गए हैं। पूछते हैं कब आएंगे? आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं ये तो पता नहीं कब आएंगे। कहा अच्छा, अगर हुजूर नहीं है तो आप अंदर पर्दे में हो जाइए। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ जहाँ मेरे महबूब बैठा करते हैं। हज़रत आयशा कहती हैं मैं अंदर हो गई। एक दीवाना आया, कहा फटे कपड़े थे, गंदा लिबास था, बिखरी हुई जुल्फ़ें थीं, चेहरे पर रेत लगी थी, ऐसा लगता था कोई मजनू आया है। कहती हैं मैंने देखा कभी हुजूर के मिंबर को चूमा जा रहा था, कभी हुजूर की मसनद से दिल लिपट कर रो रहे हैं, कभी बिस्तर को चूम रहे हैं, कभी दीवारों से लगकर रो रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं ये बेकरारी मैंने देखी तो कहा ये दीवाने, इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता? तो आप फरमाते हैं मजबूरी है मेरे आगे। अगर इंतज़ार की बात होती तो सारी ज़िंदगी उनकी राह में बैठकर गुजार देता, एक लम्हा दूरी इख्तियार ना करता। ये कहकर जब चीख मारकर जाने लगे, आवाज़ आई, ओ दीवाने ठहर क्यों नहीं जाता? अर्ज़ करते हैं मेरे आका आ जाएं तो उनसे मेरा सलाम कह देना दीवाना आया था। ये कहकर वापस चले जाते हैं। इतने में महबूब जहाँ तशरीफ़ ले आते हैं, वैसे ही मस्जिद में कदम रखा। फरमाते हैं आयशा। कहा जी या रसूल अल्लाह। फरमाया बता तो सही कौन आकर के गया है? कहती हैं या रसूल अल्लाह एक दीवाना था, बाल बिखरे थे, कपड़े पोशीदा थे, पुराना लिबास था, चेहरे से मजनू लग रहा था। मेरे नबी ने इतना सुना, नबूवत वाली आंखें बरस जाती हैं। फरमाते हैं आयशा तुझे नहीं पता, वो मेरा दीवाना उवैस आया था, मेरा दीवाना उवैस आया था। कहा या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चला? मुस्तफ़ा कहते हैं आयशा देखो खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया है। वो बेखबर हो गुलामों से तो आका क्या है, हुजूर को गुलाम के एक एक आंसू के एक एक कतरे की खबर है। कहा अबू बकर जल्दी करो, मेरे उवैस को देख कर लाओ। दुनिया हुजूर की तरफ दौड़ती है, हुजूर उवैस के पीछे लोगों को दौड़ा रहे हैं। जाओ मेरे उवैस को लेकर आओ। हज़रत उमर दौड़े, हज़रत अबू बकर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। खाली वापस आ गए। जब खाली वापस आए, या रसूलल्लाह नहीं मिले। अब तक उवैस को एक सब्र था कि अभी मदीने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब क्या, जाकर भी खाली हाथ वापस आ गए। जब भी महबूब को ना देख सके, ये चीज़ उवैस को तड़पा रही थी। वापस आ गए, घर दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने कहा बेटे उवैस। उवैस ने कहा जी अम्मी। आ गए? कहाँ? हाँ। बोली जिन आँखों को देखने को तड़प रहा था, बता वो आँखें कैसी हैं? जिस चेहरे के लिए तरसता था बेटे, बता वो चेहरा कैसा है? जब बोलते हैं महबूब को चेहरे कैसा लगता है, जब मुस्कुराते हैं महबूब तो कैसे लगते हैं, उनकी जुल्फ़ें कैसी हैं, उनका कद कैसा है? बेटे तू तो देख कर आया है, बता तो सही वो कैसे हैं? इतना कहा कि चीख निकली उवैस करने की। चीख मार कर कहते हैं अफसोस महबूब को न देख सका। क्या हुआ बेटे? कहते हैं माँ जब मैं पहुँचा तो माँ हुजूर मदीने से कहीं जा चुके थे। इतना सुनना था कि माँ कहती हैं बेटे फिर आने का इंतज़ार कर लेता। इतना सुनना था कि उवैस कहते हैं माँ तूने ये कहा था कि सूरज छुपने से पहले आना है। माँ अगर मैं ये रुक जाता तो माँ तेरा वादा टूट जाता, अगर मैं रुक जाता तो तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती, इसलिए नहीं रुका। माँ ने कहा जल्दी कर, मेरे सीने से आके लग जा।
माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटे आंसू न बहा, सारा ज़माना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता है, सारा ज़माना मदीने वाले की बातें करेगा मेरे लाल। ये माँ दुआ दे रही है, मदीने वाला तेरी बातें करेगा। और हुजूर ने मिंबर पे खड़े होकर कहा था, मेरे सहाबा मेरे बाद उमर और अली मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे, ये लो मेरी कमीज़, मेरे उवैस को देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। हुजूर के पर्दा करते ही हुजूर हज़रत के बाद हज़रत उमर और हज़रत अली गए। कहने लगे, हुजूर ने बड़ी तारीफ़ें की हैं, चलो आजमाते हैं। पहुँचे और कहा, अली आवाज़ दो। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, आप आवाज़ देना, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। जैसे ही हज़रत उमर ने सलाम किया तो हुजूर हज़रत उवैस का रुख उधर था, पीछे खड़े थे, देखा नहीं। हज़रत उमर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, बिना देखे कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आओ अमीरुल मोमिनीन। हज़रत अली ने कहा, लगता है अमीरुल मोमिनीन है इसलिए पहचानते हैं। तो कहा, अली अब तुम सलाम करो। जब हज़रत अली ने सलाम किया तो आपने हज़रत अली का नाम लेकर आवाज़ दी, आइए ना मौला अली। बुलाया, करीब पहुँचे, कहने लगे, उवैस कहते हैं जिस रब ने तुम्हें मेरे बारे में बताया उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अगला सवाल किया, अच्छा ये बताओ, इतना इश्क था हुजूर से तो कभी मिलने क्यों नहीं आए? तो कहने लगे, नहीं आ सका, मेरी मजबूरी थी। लेकिन तुमने तो हुजूर को देखा है ना? कहने लगे, हाँ देखा है। तो उवैस कहने लगे, तो अच्छा ये बताओ, मेरे हुजूर की अबरू भौएं कैसी थी? कहने लगे, अभी किसी सहाबा ने नज़र भर के हुजूर को नहीं देखा, जलाल ही इतना था, नबूवत का नज़र ठहरती ही नहीं थी। तो उवैस कहने लगे, तुम तो रात और दिन देखकर न बता सके, मैं बताऊं कैसी थी? कैसी थी? कहा, दूर से देखो तो मिलती हुई लगती थी, करीब से देखो तो जुदा लगती थी, तुमने तो कभी देखा ही नहीं, पता कैसे चला? फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हुजूर मेरी नज़रों में ना रहते हो। फिर उवैस ने कहा, बताओ कैसे आना हुआ? हुजूर ने दुआ के लिए कहा है, ये कमीज़ दी है, बेकरारी थी ऐसा आलम जब महबूब को कोई तोहफा दे और वो बरसों तरसा हो, देखकर तड़प गए। कहा, मेरे लिए? कहा, जी। कहा, एक पैगाम भी भेजा है। कहा, क्या? कहा, मेरे उवैस से दुआ के लिए कहना, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। अगला जुमला सुनिए। कहा, जब मेरे नाम हुजूर के होठों पर आया था तो हुजूर का चेहरा मुबारक कैसा था? ये इश्क है। कहा, दुआ कीजिए। उवैस करनी ने सजदे में सर रखा, कहा, या अल्लाह, मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। आवाज़ आई, फला कबीले के बकरियों के बालों के बराबर बख्शा गया। फिर कहते हैं, या अल्लाह, तादाद और बढ़ा दे। फिर आवाज़ आती है, फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर हमने उम्मत बख्श दी है। फिर कहते हैं, नहीं अल्लाह, और बढ़ा दे। आवाज़ आती है, जहादी उम्मत बख्श दी। कहते हैं, या अल्लाह, और बख्श दे। आवाज़ आती है, उवैस सजदे से सर उठा ले। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमें यही सबक देती है, इश्क शोहरत से नहीं बल्कि इखलास, खिदमत, आजिज़ी और इताअत पोशीदा होता है। अल्लाह ताला के नज़दीक मुकाम, दौलत, खूबसूरत या लोगों की तारीफ़ से नहीं मिलता, असल मुकाम इखलास से मिलता है। हज़रत उवैस करनी के पास ना कोई महल था, ना कोई लश्कर, ना कोई दुनियाई ताकत, मगर उनके पास एक चीज़ थी, वो थी सच्चा दिल। ऐसा दिल जो हर वक्त अल्लाह की याद के लिए तड़पता था। ऐसा दिल जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में धड़कता था। ऐसा दिल जो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत को इबादत समझता था। पर अफसोस, हम में से बहुत से लोग इबादत तो करना चाहते हैं लेकिन वालिदैन की खिदमत से भागते हैं। हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हमें ये सिखाते हैं कि इश्क सिर्फ जज्बात का नाम नहीं,
इश्क इताअत का नाम है, इश्क सब्र का नाम है, इश्क आजीज़ी का नाम है। इश्क वो है जो गुमनामी में भी अल्लाह के करीब कर दे। ज़रा तसव्वुर कीजिए वो लम्हा कैसा होगा जब क़यामत के दिन लोग मैदान हश्र में खड़े होंगे। हर इंसान अपनी निजात की फ़िक्र में होगा और उस दिन एक गुमनाम इंसान जिसे दुनिया ने कभी अहमियत नहीं दी, अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसा मुकाम रखता होगा कि उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। यही तो असल कामयाबी है कि ज़मीन वाले तुम्हें ना पहचाने लेकिन आसमान तुम्हारे नाम से वाकिफ़ हो। अगर वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो दावे ना करें, अपने दिल साफ़ करें, वालिदैन की खिदमत करें, नमाज़ पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें उवैस करनी जैसा इखलास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वालिदैन की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। आमीन। जो आदमी माँ बाप की खिदमत करता है, इस किस्से से साबित होता है उसकी दुआएं कबूल होती हैं। एक रिवायत में है कि जो आदमी अपने वालिदैन चाहे ज़िंदा हो या फौत हो चुके हों, ये आदत बना ले रोज़ाना माँ बाप के लिए दुआएं करे, सारी ज़िंदगी उसके रिस्क में बेबरकती नहीं आएगी। अल्लाह उसके रिस्क की बरकत अता करेगा और वो वालिदैन के लिए दुआएं नहीं करता, अल्लाह ताला की रहमतों से महरूम हो जाता है। वालिदैन के हक़ में दुआ करना अल्लाह की रहमत को दावत देना है। माँ बाप की दुआओं में अल्लाह की रज़ा है। माँ बाप राज़ी हो जाएं तो समझ लो अल्लाह राज़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करता है, माँ बाप को झड़कता नहीं है, उनकी फरमाबरदारी करनी है। इंसान का इम्तहान जब शुरू होता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, चलने फिरने की दिक्कत होती है, सिर्फ सांस की एक डोरी लटकी रहती है। जब बच्चा छोटा था तो वो मक्खी भी नहीं उड़ा सकता था, वो हालत अब माँ बाप की हो गई है। बच्चों की तरह मिजाज चिड़चिड़ा हो गया है। ये आजमाइश के दिन है, ये इम्तहान के दिन है। अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो फिर तुम्हें उनकी ताज़ीम करनी है। कैसी ताज़ीम करनी है? तुम्हें उन्हें उफ भी नहीं कहना है। जब माँ या बाप बूढ़े हो जाते हैं, कभी कभी पलंग पर पड़ जाते हैं, उनके बदन से जो नजासत लगी रहती है, इंसान उससे नफ़रत करता है। इंसान माँ बाप से नफ़रत नहीं करता, उस नजासत से नफ़रत करता है। माँ बाप की खिदमत का बहुत बड़ा सिला है। देखिए, कितनी भी नमाज़ पढ़ लें, कितनी भी इबादत कर लें, लेकिन माँ बाप को राज़ी करना भी एक इबादत है। जिसके माँ बाप खुश, उसका अल्लाह खुश। अल्लाह पाक हम सबको अपने वालिदैन को खुश करने और अपने अल्लाह को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये जो कब्र मुबारक वीडियो में देख रहे हैं, ये हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि की कब्र मुबारक है। हम सब मुसलमान भाई बहनों को हज़रत उवैस करनी जैसा माँ बाप का खिदमत गुजार और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बनाए और अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।